Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter India's Foreign Policy, and under this chapter, we have started our discussion regarding uh, the factors which were the circumstances which were prevailing at the time of independence of the country. And in this regard, we have seen that when India got independence at that time, our the whole world was starting to be divided into two groups, and these two groups were led by two superpowers, the US and the USSR. And in this situation, our main focus was to adopt such a foreign policy which can ensure our freedom and sovereignty. And that is the reason this policy of non-alignment was adopted by our country. We can say that Pandit Nehru, who was the Prime Minister of India at that time, he was one of the founding fathers of this non-aligned movement. So, in this way, we have laid the foundation for this non-aligned movement, and the main purpose of starting of this movement was to ensure world peace and security. Because if suppose this non-aligned movement was not there, then what would have happened that all the independent newly independent countries of Asia and Africa, they either have to join US or USSR, and in this way the division, or we can say the division of the world into two groups could have become more sharp, and this could have led to more unrest and conflicts. So in a way, it was a contribution of our country for the world peace. And the another reason was that Nehru and other like-minded leaders like Marcel, Tito, Kwame Nkrumah, and Sukarno, they all were of the opinion that every country must have its own foreign policy. It should not adopt the foreign policy of another country. We must have our own foreign policy. Our foreign policy must protect the national interest of our own country. And for that purpose, we can say that this non-aligned movement was started with this Belgrade. In Belgrade, there was first non-aligned summit was held in the year 1961, and we can say that in order to formulate the foreign policy of a country, two factors are very important. The first is external factor, and the second is internal factor. And in the context of our country, what we find that our first Prime Minister Pandit Nehru, he played a crucial role in setting the national agenda, because he was not only the Prime Minister but he was foreign minister as well. So he exercised profound influence in the formulation and implementation of foreign policy from 1946 till 1964, because he was holding both the post, not only the Prime Minister but also the foreign minister. And we see that Nehru's foreign policy had three major objectives. Okay, three major objectives थे नेहरू की foreign policy के. And what were these objectives? These objectives were the first was to preserve the hard earned sovereignty. जिस sovereignty को हमने इतनी मुश्किल से पाया है उसको preserve करना है ना. So the first
objective was to preserve the sovereignty. And the second aim or the second objective of Nehru's foreign policy was to achieve to protect टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, अपनी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि हमारी जो टेरिटरी है उसको कोई और अपना उस पर क्लेम करे, जैसे चाइना ने किया। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। Okay, and the third objective of Nehru's foreign policy was to promote rapid economic development, because we were facing this challenge as well, the problem of economic backwardness, to achieve rapid economic development. So these were the three objectives, and Nehru was of the opinion that in order to achieve these objectives, there should not be the use of any kind of violence, and there should be we should adopt the strategy of non-alignment to preserve the sovereignty of the country, to protect the territorial integrity, and to achieve rapid economic development. It was very much important that we must follow this policy of non-alignment. Okay, and at that time in our country there were many groups and parties, political parties, who wanted that India should be more friendly with the US bloc, because that US bloc was pro democracy, है ना। USSR ब्लॉक जो था वो तो कम्युनिस्ट था, तो दैट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जहाँ भी कम्युनिस्ट होती है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर्स थे, ऐसे ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि हम प्रो यूएस हो जाए, यूएस के ब्लॉक में हो जाए शामिल, क्योंकि यूएस जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ओके, और इस तरह के सोचने वालों में अंबेडकर का जो नाम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वी कैन से दीज आर द रीजंस विच कॉज्ड contrast of opinion which ultimately led to conflict between these two famous personalities. So ऐसे भी political parties थे जो कि बिल्कुल ही कम्युनिज्म को अपोज करते थे, है ना। एंड वो ये चाहते थे कि अगर इंडिया मतलब यूएस ब्लॉक में न भी शामिल हो तो इंडिया ऐसी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करे जिससे कि यूएस की तरफ हमारा टिल्ट हो, है ना। और ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो चाहते थे कि प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को हम अडॉप्ट करें, उनमें भारतीय जनसंघ का नाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में स्वतंत्र पार्टी भी इसी तरह के व्यू रखती थी, बट नेहरू जो है नेहरू का काफ़ी वेट था इस मामले में, क्योंकि ही वॉज नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर। तो नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से मोल्ड किया, और जिसमें नॉन अलाइनमेंट जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे फॉरेन पॉलिसी का। खास करके अगर 1991 तक के टाइम को देखें, जब तक कि यूएसएसआर ख़त्म नहीं हुआ था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अप टू द ईयर 1991 कोल्ड वॉर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, and it was the opinion, it was the contribution of Nehru. Okay, so what does this mean इंडिया के लिए? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट हमने पहले भी किया है, वी हैव डन दिस ऑल्सो।
यहाँ पर वी नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नन अलाइनमेंट. नन अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि टू मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कैंप्स, है ना. तो अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग होता है. To maintain equidistance from both the camps. कहने के लिए तो बहुत ही आसान लगता है कि दोनों ही कैंप से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो ये इतना आसान नहीं होता है. इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आए प्रैक्टिकली. जब भी इंडिया ने इस इक्वी डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहा तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आए जहाँ पर हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में हमारी कंट्री, हमारे जो लीडर है वो फंसे. लाइक अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, किसी भी मिलिट्री अलायंस को हमने नहीं ज्वाइन किया. ईदर वी हैव नीदर ज्वाइन द मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएस नॉर द मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसएसआर, है ना. किसी को भी हमने ज्वाइन नहीं किया. ओके. और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट बुक में वी हैव रेड अबाउट इट. And by not becoming member of any of the military alliances, India tried to maintain balance between the two superpowers. India tried to maintain equidistance from the two superpowers, but it was not easy. As I told you, we can see it from one example. What happened in 1956? In 1956, what happened that Britain attacked Egypt and the matter was Suez Canal. Suez Canal का जो इशू था, उस इशू पे ब्रिटेन ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे. इंडिया ने इस अटैक की बहुत ज़्यादा कंडेम किया कि बहुत गलत हुआ है ये. एक्चुअली वी कैन से दैट इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इन्वेजन ऑफ Britain on Egypt. It was named by India as neo-colonial invasion, है ना. तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो सामने आती है हमारे, ये कंडीशन हुआ. और इसके बाद ये 1956 में हुआ, ठीक है. एंड देन अगेन इसी ईयर में, इन द सेम ईयर, व्हाट हैपेंड दैट यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, ठीक है. जो 1956 का एक इवेंट हम देख रहे हैं जहाँ पर ब्रिटेन जो है वो इन्वेड कर रहा है इजिप्ट. और दूसरा इंसिडेंट है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएसएसआर जो है वो इन्वेड कर रहा है हंगरी. अब दोनों सेम टाइप ऑफ एक्ट है, दोनों में इन्वेजन हो रहा है ना. दोनों में इन्वेजन हो रहा है. एक जगह ब्रिटेन कर रहा है, दूसरी जगह यूएसएसआर कर रहा है ना. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्रिटेन कर रहा है तो इंडिया इसको अपोज कर रहा है, और जो यूएसएसआर कर रहा है तो इंडिया उसको अपोज नहीं कर रहा. क्यों? बिकॉज इंडिया जो है, इट इज़ नॉट ईजी to balance both the superpowers. It is not easy to maintain equal distance from both the camps. आपका यूएसएसआर की तरफ टिल्ट था, है ना. नेहरू खास करके अगर देखा जाए, नेहरू ही गाइड कर रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को. तो नेहरू वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी. वो यूएसएसआर से उनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट, हम इसको कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग an aligned country we have this tilt towards USSR, जो कि हमको इससे समझ में आ रहा है. ब्रिटेन ने अटैक किया, आप पूरी वर्ल्ड प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं. यूएसएसआर ने अटैक किया, आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं,
है ना। इंडिया ने पब्लिक कंडेमनेशन किया ही नहीं जो यूएसएसआर के अटैक का। तो ये क्या है, ये दिस इज़ द प्रॉब्लम, these are the we can say practical problems which the country face when it tries to maintain equidistance. It is not easy, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो उसने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के स्टार्टिंग में फाउंडेशन में सबसे ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको यही कन्विंस कराया कि दे शुड नीदर ज्वाइन द वेस्टर्न अलायंस नॉट द ईस्टर्न अलायंस, इंस्टेड दे शुड ज्वाइन दिस नॉन अलाइन्ड movement. Okay, and now what we find that Pakistan, which was the neighbor of India, Pakistan joined that US led military alliance, है ना। and US wanted India to be on its side, है ना। US चाहता था कि इंडिया भी US अलायंस को ज्वाइन कर ले, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। and then we see that this US ने इसको अप्रूव नहीं किया, इंडिया के जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी उसको उसने पसंद नहीं किया, और इस कारण से हम देखते हैं कि अगर आगे का जो सिचुएशंस आता है उसमें हम देखें कि इंडो यूएस रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। अगर स्टार्टिंग के पीरियड को देखें तो इंडो यूएस रिलेशन अच्छा नहीं रहा, और यूएस जो है वो इस बात को हमेशा रिजेंट किया कि इंडिया का जो ज़्यादा जो रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के साथ इंडिया अपना डेवलप कर रहा है उसको यूएस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, है ना। और ये हमने लास्ट चैप्टर जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट देखा तो भी हमने देखा कि नेहरू हाउ ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन। तो इस कारण से अगर हम देखें तो हमारा जो टिल्ट था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अन अलाइन्ड कंट्री, वी वर टिल्टेड टुवर्ड्स the USSR. And now the next element we can say, this is the first element of our foreign policy, that non-aligned movement. And now we will see the next element. Okay, what is the next element of our foreign policy? The next element of our foreign policy is Afro-Asian unity. Afro-Asian unity. In this also we see that Nehru was a visionary leader, and he was visualizing that India is going to play a major role in world affairs, especially in the affairs of Asia. Okay, and that is the reason he established so many contacts between India and other newly independent countries of Asia and Africa, because he believed that the third world countries must have unity among themselves, and he was emerging as the leader of these newly independent countries. And throughout this 1940s and 50s, we see that Nehru always advocated the unity of Asia and Africa, and we see that under his leadership our country convened the Asian Relation Conference in March 1947. This is important, ये आता है ये क्वेश्चन Afro-Asian unity के रिगार्डिंग। तो क्या क्या एफर्ट्स हुए वो आपका उनका नाम लिखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, एशियन रिलेशन So this was one of the effort to bring Afro-Asian unity. Okay, and then you can just imagine, ये हम बात कर रहे हैं मार्च 1947 का। Till now India has not achieved its freedom. Still
it is making effort for this Asian Relation Conference means he is making effort for the unity of the Asian countries. Okay, and then we see that India was also keen supporter of this demand that there should be early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime, and for that purpose only India convened an international conference in 1949 to support the freedom of Indonesia. So this is another point. This is Afro-Asian unity में क्या क्या हुआ, एक तो ये हुआ, और दूसरा जो अभी हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इंडोनेशिया की अर्ली फ्रीडम के लिए इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया जिसका नाम था, जिसको हम नाम तो ऐसा कुछ नहीं है सच, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया 1949 में। किस मैटर पे, ये आपको याद रखना जरूरी है। इंटरनेशनल है ना, 1949 में इंडिया ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया। So this was also another attempt by India so that it can play, we can say India, Nehru wanted to play this role of leader of Asian unity, Asian and African unity. And not only this, India was also a staunch supporter of the decolonization process, and it also firmly opposed racism, which was prevalent in South Africa, which is called apartheid. So India was very much against this system of apartheid, and again we see that in Bandung in 1955 this Afro-Asian conference was held. That is also important. Afro-Asian conference in 1955. कहाँ हुआ था? बांडुंग। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो बांडुंग में ये कॉन्फ्रेंस होता है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस. एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस वाज, वी कैन से इट वाज a stepping stone on the path of that non-aligned movement, है ना. नॉन अलाइन मूवमेंट की जो स्टार्टिंग हो रही है वो इन्हीं से होती है, इसी से होती है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 की. सो ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस था, इसमें ये समझ में आया कि इंडिया जो है वो न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व है, और इंडिया जो है वो अफ्रीकन और एशियन यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है. ओके, एंड दिस बांडुंग कॉन्फ्रेंस से ही, जैसा कि आई टोल्ड यू, लेटर में फिर वो नॉन अलाइन मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है. और नैम का जो फर्स्ट मीटिंग ये भी अभी मैंने बताया था, बेलग्रेड में हुआ था. बेलग्रेड का यूगोस्लाविया 1961. ओके, सो दिस इज अबाउट द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. ये दो एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कहे जाएंगे. अब हम लोग पर्टिकुलरली जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रिलेशन था उसको देखेंगे. लाइक अभी सबसे पहले हम देखेंगे इंडो चाइना रिलेशनशिप. ओके, सो इंडिया और चाइना जो है वो दे आर
नेबर्स है ना, दे शेयर द बाउंड्री। और हम लोगों ने एक बहुत ही फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट किया अपने रिलेशनशिप को। 1949 में पीसीआर बनता है, पीपल्स रिपब्लिक, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू गिव रिकॉग्निशन टू पीआरसी, क्योंकि जो चाइना की जो गवर्नमेंट थी जिसके अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन करके, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करके पीआरसी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो जो गवर्नमेंट थी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी चाइना की, वो ताइवान चली गई थी, भाग गई थी ताइवान। और दोनों ही क्लेम कर रहे थे कि वो रियल चाइना है। एक तरफ वो ताइवान में जो पिछली सरकार थी वो, और दूसरी तरफ ये जो पीआरसी बनी ये। बट इट वाज इंडिया, there were other countries also, so India was among the first countries who gave recognition to PRC as China, है ना। तो ये इसके साथ ही हमने अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया। और आगे हम ये देखते हैं कि नेहरू का जो सोच थी, एक्चुअली वो क्या सोच रहे थे, उनका ये था कि अगर चाइना वाज सच अ बिग कंट्री, इंडिया वाज आल्सो बिग, अगर हम टेरिटरी को देखें तो इनको ये इनका जो विज़न था वो ये हो रहा था कि अगर हम चाइना के साथ मिल के रहते हैं तो इंडिया और चाइना दोनों मिल करके वेस्टर्न डोमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़े पावर बन जाएंगे। तो इसलिए इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू चाइना के साथ अच्छे रिलेशन को ही मेंटेन करना चाहा। और इसमें उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल के साथ, बिकॉज वल्लभ भाई पटेल जो हैं, आई टोल्ड यू इन क्लास ऑल्सो, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग पहले कई बार हमारे डिस्कशंस में ये सब चीज़ें आई हैं। वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑफ द ओपिनियन क्या है कि चाइना जो है वो अटैक कर सकता है इंडिया, और इसलिए वो हमेशा इस बात के लिए कहते थे कि हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। बट नेहरू जो थे वो ही वॉज हाईली आइडियलिस्टिक, और जो वो अपने जो सोच रहे थे उसी हिसाब से चीज़ों को समझ रहे थे। उनको ये लगता था कि चाइना के साथ हम अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे तो हम एक बहुत बड़े पावर बन जाएंगे, और चाइना कभी भी हम पे अटैक करने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये इट वाज ब्लंडर ऑन पार्ट ऑफ नेहरू, कि उनको यही लगा कि ये हाईली अनलाइकली है कि इंडिया पर चाइना का अटैक हो। और बहुत लंबे समय तक यू विल बी सरप्राइज टू नो कि चाइनीज़ बॉर्डर जो थी उस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, आर्मी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि चाइना से हमें कोई खतरा है ही नहीं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट होता है, एक्चुअली ये स्टार्ट होता है तिब्बत के साथ। तिब्बत वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर worsening of the relationship between India and China, Tibet. Okay. अब अगर तिब्बत हम देखें तो तिब्बत क्या है, इट्स अ प्लेटू, है ना, जो कि सेंट्रल एशियन रीजन का एक प्लेटू है जिसको तिब्बत कहा जाता है। और इसके कारण इंडिया और चाइना के रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। चाइना जो है वो शुरू से क्या करता है कि क्लेम करता है कि तिब्बत पे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, यानी कि तिब्बत इज़ अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन तिब्बत जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती है, इंडिपेंडेंट थी भी तिब्बत। तो 1950 में चाइना ने क्या किया, चाइना टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत, चाइना ने तिब्बत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जो तिब्बत की पॉपुलेशन थी वो अपोज करने लगी, वो दे वर नॉट लाइकिंग दिस चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ओके, and in this situation which was prevailing between China and Tibet, India got involved. It was we can say it was the blunder, starting of the blunder. India should not have interfere in the matter of China and Tibet, but India started to try to persuade China to recognize Tibet's claim for independence. And when India started doing this, what
what was the opinion of China? China began to see that India is interfering in the internal affairs of China. And in the next class we will see how Panchasheel agreement was done, and many more things. Okay, so this is all for today.